خواتین و حضرات، میں آپ سب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام روحیدہ خان ہے اور میں اس آرگنائزیشن کی جنرل سیکرٹری ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس تقریب کی اہتمام کا مقصد زبان اردو کے دو ایسے خدمتگاروں کی پذیرائی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردو کی ترقی و تبلیغ میں گزارا ہے۔ آج کا پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں کچھ تقاریر اور ایوارڈز دیے جائیں گے۔ دوسرے حصے میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی تقریب کے میزبان ایک ایسے مہمان ہیں کہ جن سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ مسرور جاوید آئے تو نیو یارک سے ہیں، لیکن ان کا ایک گھر کیلیفورنیا میں بھی ہے۔ نہ صرف ایک اچھے شاعر ہیں بلکہ ایک اچھے ناظر اور ایک بہترین دوست بھی ہیں۔ نیو یارک میں زبان اردو کی جتنی بھی محفلوں کا انعقاد ہوا ہے، ان میں مسرور جاوید کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں جناب مسرور جاوید کو کہ وہ آج کی تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیں۔ مسرور جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آج میں آپ کو ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جس دروازے سے داخل ہوئے اس ہال میں اور جب اس دروازے سے باہر جائیں گے تو ایک ایسی تاریخ رقم کرنے میں آپ مددگار ثابت ہوں گے کہ جس کو آپ برسوں کبھی کبھی تنہائی میں اور کبھی محفلوں میں جب یاد کریں گے تو آپ اپنے اوپر اور اپنی زبان پر ناز کریں گے۔ پاکستانی خواہ پاکستان میں آباد ہو، نیو یارک میں یا کیلیفورنیا میں، یہ ایک ہی سمندر کی دو مختلف موجیں اور ایک ہی ملک کی دو مختلف فوجیں ہیں۔ ہر ایک کے جذبات، احساسات اور خیالات محض صرف ایک ہی ہوتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خواتین حضرات، میں چونکہ پچھلے 20-25 سال سے نیو یارک میں مقیم ہوں، وہاں پر ادب اور زبان کے حوالے سے بہت بڑی تقریبات بھی ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ سب کو گواہ بنا کر یہ آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر عظیم دانشوران کا یہ اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ لاس اینجلس ادب اور زبان کے معاملے میں نیو یارک کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے مشاعرے اور یہ تقریبات کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی مٹی کو چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں، اپنے پیاروں سے الرجی اختیار کر کے یہاں آتے ہیں، اپنے خیال رکھنے والوں کو جب یہاں چھوڑ کر آتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اندر سے ہم بڑے ٹوٹے ہوئے اور تنہا ہوتے ہیں، اور ہماری کیفیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں آپ ہی دروازہ ہوں اور آپ ہی دستک اور آپ ہی رہتا ہوں یہاں منتظر اپنا۔ لیکن ہمارے ذہن کے گوشے میں اور لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ جو اکیلا پن ہے اور یہ جو شعور میں ہمارے ایک احساس بن جاتا ہے کہ ہم یہاں پر تنہا ہو گئے ہیں، اپنی زبان کو، اپنی مٹی کو، اپنی دھرتی کو، اپنی زمین کو اور اپنے وطن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر اس کی یاد میں یہ ساری محفلیں سجاتے ہیں، جہاں پر آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور پھر زبان کی ترویج اور فروغ کے لیے ہم سب جو کام کرتے ہیں اس میں آپ یقین کیجئے کہ آپ کا بھی حصہ اتنا ہی ہے جتنا ان سارے آج کی خوبصورت محفلیں سجانے والے منتظمین یعنی اردو رائٹر سوسائٹی کا ہے۔ میں آپ سب کو اردو رائٹر سوسائٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے یہاں پر بولنے والے اور اپنی تحریروں سے آپ کو آگاہ کرنے والے لوگ آئیں گے وہ بھی یقیناً اختصار سے کام دیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا، جیسا کہ روحیدہ خان نے بتایا، ہمارا جو دوسرا سیشن ہوگا اس میں جو شعراء حضرات ہوں گے وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے مختصر اور جامع بات وہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے 2-3 جملوں میں آپ اپنا نفس مضمون بیان کرتے، پوری کتاب میں جو بات نہیں کہی جاتی وہ ایک شعر میں کہی جاتی ہے۔ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ کرشن بہاری نور جب یہ بات ایک شعر میں کہتے ہیں تو اس ایک شعر پر
पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में 7 किताबें शाया हुई इस शेर पर और वो PhD की डिग्री लोगों को दी गई। आप बताइए जब 7 किताबें एक शेर में ढल सकती हैं तो हमारे शोरा लॉस एंजलिस के मकामी शोरा खासतौर पे इतने लायक हैं कि आप देखेंगे कि आज वो आपके सामने न सिर्फ एक इख्तिसार से काम लेंगे बल्कि इस महफिल का भी तक़द्दुस का ख्याल रखेंगे। हमारे जितने यहाँ शुरका हैं उन्होंने आज ये फैसला किया है कि जो जितना कम पड़ेगा उसको उतनी ज़्यादा दाद देंगे। आइए ख़वातीन हज़रात, अब जरा सी संजीदा बात हो जाए। तबातबाई अली सैयद अली मोहम्मद तबातबाई एक ऐसा नाम है कि अहले लॉस एंजलिस ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है वहाँ पर तमाम ही अफराद जिनसे मुतालिक रहे हैं और जिनको जानते हैं उस शख्सियत पर नाज करते हैं। और आज की तकरीब मुनाफिक करने का सेहरा जिस शख्स के साथ है इरफान मुर्तज़ा, वो एक अपनी दिल में मगन दीवाना है। वो इस तरह काम आज मैं जब दोपहर को आया तो मैं हैरान रह गया। वो एक ड्रिल लिए हुए जनाब पता क्या कहें यहाँ किताबें रखने के लिए क्या पसीने में नहाया हुआ बुरी तरह से 4 दिन से देख रहा हूँ अपनी होश नहीं है। ये तो बेगम अमरीकी है वरना खुदा मालूम क्या चलो कर जहाँ तक इख्तिसार की बात है तो मुझे याद आया कि एक साहब जो शायर अपने शेर सुनाने के लिए जब डाइस पर आए तो पहली गज़ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं पर एक साहब शेरवानी पहने हुए थे। वो उठे, उनके हाथ में छतरी थी और आगे घुमाने लगे वो। तो शायर जो डर के कहले बड़े साहब क्या कोई बात हो गई? कहले नहीं बेटा तुम पढ़े जाओ, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ तुम्हें यहाँ लेके आया। तो मेरे ख्याल से काफी मैंने इशारात दे दिए हैं और आप देखेंगे अफाका होगा इंशाअल्लाह। बस आपका ताबुल चाहिए। आइए इस महफिल को शुरू करते हैं। आज तबातबाई जो 1930 में पैदा हुए वो एक इंतहाई नफीस इंसान थे। हम सब उनकी याद में यहाँ बैठे हैं। उनके जो अवार्ड का इजरा हुआ है 5018 का, उसके मुताबिक हम बातचीत करेंगे। ये अवार्ड के फ़ायदे क्या हैं और आखिर हम सब अपने घरों को छोड़कर जो इतनी दूर आए हैं इसके पीछे मकसद क्या है। हम सब जो यहाँ जमा हुए हैं, जो ज़बान के फ़रोग़ के लिए जो आप बराह रास्त शरीक हैं, ये आप नहीं बल्कि आप यहाँ पर अपने आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अपने तहज़ीब और सकाफ़त के लिए आपको अपनी ज़बान की हिफाजत करनी होगी। और क्योंकि ज़बान जो होती है वो तहज़ीब और सकाफ़त की पहचान का सबसे मौसर ज़रिया होता है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उर्दू राइटर सोसाइटी जब जब आपको बुलाएगी तब तक आप इसी तरह टाइम पर आते रहेंगे और इसी तरह यादगार तकरीब मुनाक़िद करते रहेंगे। आज की इस तकरीब की सदर हक़दार बहक़ नसीब मेरी बहन अमीर ये तबातबाई साहब की बड़ी साहबजादी कि मैं समझता हूँ कि जितना ताल्लुक़ अपनी ज़बान को फ़रोग़ देने में उन्होंने किया, इतनी मोहब्बत से महफिल सजाई, आपकी मेज़बान आना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनका नाम लूँ तो इस हाल में मौजूद हर शख्स उसका ऐसा इस्तेमाल करे कि वो जब कभी अकेले में अपने बिस्तर पर लेटी हूँ तो ये तालियाँ उसके जहन में उस वक्त तक पीछा करती हूँ। मैं आज की इस महफिल की सदारत की दावत दे रहा हूँ बेगम तनवीर मिर्ज़ा साहिबा को। उर्दू ज़बान का एक मुहावरा है कि होनहार बरबा के चिकने चिकने पाक। मतलब ये होता है कि जो बड़े लोग जिस किस्म के काम करते हैं उनकी औलाद जो है वो वही नक्श कदम इख्तियार करती है। जो उर्दू का चराग अपनी अंजुमन से दूर रहकर तबातबाई ने रोशन किया था, उसकी रोशनी को मज़ीद जिला बख्शने के लिए बेगम तनवीर मिर्ज़ा ने और उनकी बहन डॉक्टर मेहर ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो इस अवार्ड का इजरा किया है, मैं चाहता हूँ कि अहले लॉस एंजलिस और जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हो सब हम सब हाथ में हाथ मिलाकर इस अवार्ड को बरकरार रखें और हम कोशिश करें कि ये इसी तरह उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए काम अंजाम देता रहे। मैं चाहता था कि आज उस मुंतज़िम को भी यहाँ स्टेज पर बुलाऊँ कि जिसने ये खूबसूरत महफिल सजाई, इरफान मुर्तज़ा को। लेकिन इरफान मुर्तज़ा मेरी तमाम बातें मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ आप ये बात नहीं मानूंगा, अगर आप मुझे स्टेज पर बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। ये उर्दू ज़बान के वो खामोश मुजाहिद हैं कि जो पीछे की सफ़ों में रहकर रात दिन मेहनत करने के बाद नामो नमूद की सिले के बगैर अपने एहसास और जज्बात और ख्यालात को काम में लाते हुए ये जो ज़बान की फ़रोग़ का काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम अगर वो स्टेज पर ना आए तो आपकी तालियों को हकदार करें।
सैयद मोहम्मद अली तबातबाई राज लखनवी अवार्ड के लिए मुंतखब की जाने वाली इस साल की जो शख्सियत है वो आप सब जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर, आलमी तौर पर मारूफ और मुमताज़ और मकबूल कालम निगार, ड्रामा निगार, सफ़रनामा निगार, ब्रॉडकास्टर और दुनियाई अदब में नुमाया खिदमात के सिले में जो इनको अवार्ड दिया गया है और पाकिस्तान की जानिब से जो इनको तमगा इम्तियाज़ दिया गया है इनकी अदबी खिदमात पर, मैं समझता हूँ कि उस तमगा इम्तियाज़ से इनकी शोहरत में इजाफा नहीं हुआ बल्कि उससे तमगा इम्तियाज़ की वक़्त में इजाफा हो गया। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आज की इस महफिल में दावत दे रहा हूँ आज के पहले मेहमान एजाज़ी जनाब कमर अली अब्बासी साहब को। बहुत सारी तालियों। आप ही के शहर के मारूफ सनतकार हैं और बहुत सारी कंपनियों के मालिक भी हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ उनका बहुत तवील तारुफ है कि बहुत सारी तंजीमों को सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान लेबरेट के चेयरमैन थे और पाकिस्तान अमरीकी चैम्बर कॉमर्स के वो चेयरमैन भी हैं और खुदा मालूम कितने उनके। लेकिन मैं उनका तारुफ सिर्फ एक जुमले में कराना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में कतई नज़र एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अपने वालिद के नाम पर जो अवार्ड जारी किया, उस अवार्ड के लिए $1000 का जो कैश का अवार्ड है, ज़फ़र अली मंसूरी अवार्ड, मैं चाहता हूँ कि देखिए 1000 आप कितनी दफ़ा कमाते हैं खुश कर देते हैं, लेकिन अवार्ड की मालियत को नहीं देखना चाहिए बल्कि उसकी पीछे स्पिरिट होती है उसको देखना चाहिए। ये जो निशान हैदर है ये 25 रुपए की चांदी होती है इसकी मालियत, लेकिन लोग इसके लिए जाने दे देते हैं क्योंकि इसके पीछे जो इसकी अहमियत है ना वो इतनी ज़्यादा कीमती होती है कि उसकी कीमत नहीं होती। ज़फ़र अली मंसूरी अवार्ड और उसके लिए जो इस साल शख्सियत मुंतखब की गई वो एक ऐसी खातून है जो साउथ कैलिफोर्निया में पिछले 22 साल से उर्दू ज़बान पढ़ा रही है रज़ाकाराना तौर पर। बर्कले यूनिवर्सिटी में इन्होंने मुफ्त क्लासें ली, अपने घर पर भी इनके यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और ये उर्दू से मोहब्बत नहीं करती बल्कि उर्दू ज़बान इनके रगों में खून बनकर दौड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएं मोहतरमा हमीदा चोपड़ा। मोहतरमा के बाद में मेरी अगली आज की मेहमान, ऐसी मेहमान शख्सियत कि जिसका तारुफ कराना सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। माइक्रोबायोलॉजी में के मजमून में MSc किया इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान नेशनल सेंटर की डायरेक्टर रही और उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों की बहुत सारे ड्रामों की हीरोइन और बहुत मारूफ आर्टिस्ट। इसके अलावा आपको हैरत होगी कि ज़बान और अदब से जो इनका ताल्लुक़ है सिर्फ शोहरत होने की वजह से नहीं बल्कि ये खुद भी इनको इतनी मालूमात और मुताला है कि जब कभी गुफ्तगू होती है तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि अब्बासी साहब के घर में अब्बासी साहब ज़्यादा काबिल है या नीलोफर अब्बासी। आपकी बहुत सी तालियों में नीलोफर अब्बासी। डॉक्टर तबातबाई के बारे में डॉक्टर नहीं बल्कि जो सैयद अली मोहम्मद तबातबाई साहब हैं उनकी शख्सियत के बारे में यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे, मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं बात करूँ लेकिन मैं चाहता हूँ वक्त की कमी है और मैं खुद ही इख्तिसार की बात करता रहा हूँ। तो मैं बराह रास्त शुरू करने जा रहा हूँ। एक जो ख़ानदान के करीबी लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, ये एक हदीस भी है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपका तारुफ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि अच्छे दोस्तों की सोबत इख्तियार करो। आज एक ऐसे ही तबातबाई ख़ानदान की दोस्त ऑन्कोलॉजिस्ट उर्दू के लिए खिदमात अंजाम देती हैं, आप शायद उनको देख भी चुके हों, आज ही उनके बारे में कुछ अपने ख्यालात के इज़हार करेंगी। इंतहाई एहतराम के साथ मुल्तमिस हैं डॉक्टर अज़रा रज़ा साहिबा से तशरीफ लाएं। डॉक्टर